Morning students. Today we are going to discussing about electoral competition. In previous classes I have discussed to you what are the different forms of democracies and what is electoral competition. We had case study of Pakistan. Today we will talk about China, the election system of China. What kind of democratic practices are there in Chinese parliament? What kind of system is prevalent there? Today in this lecture we will find it out. You know that in these days we are discussing about what is democracy and why do we need democracy, what are the benefits of democracy, and what kind of democratic setup is required for a nation. Students, as you know that in Western countries, in European continent, democratic practices are different in comparison of Asian continent or in Eastern countries. There are certain types of measures which is very important to take for the government, for the betterment of people. And time and again I have told you that democracy or the setup of democracy and the accountability and the type of democracy, which one is better? What is liberal democracy and what is direct participation in democracy? Which one is good? So in Chinese case and in the matter of China, we will talk about Chinese parliament, their political parties and election system. And a special thing about China is that China is not a purely democratic country like India, USA, New Zealand, Norway, Sweden, etc., etc. Chinese democracy is different. Yeah, it's okay. Election held after every 5 years. Okay, but socialist democracy, Chinese government, there is socialist democracy. So most of you were thinking that what is socialist democracy, what is liberal democracy, what is representative democracy, what is direct democracy, what is referendum. You all have so many questions in your mind. So let me clear you all. हिंदी में थोड़ा आपको मैं बताऊं, चाइना के अंदर किस प्रकार का लोकतंत्र है। चाइना के संसद, चाइना के पार्लियामेंट, जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये जो है चाइना के पार्लियामेंट का नाम है। जैसे इंडिया के पार्लियामेंट को हम लोग संसद कहते हैं, अमेरिका के पार्लियामेंट को हम लोग कांग्रेस कहते हैं, वैसे ही चाइना के पार्लियामेंट को हम लोग कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और इसके ही पास पावर है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का। आई मीन टू से दैट कि चाइना का जो प्रेसिडेंट होगा, फिलहाल सी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं, उनको चुनने का अधिकार चाइना के संसद को है, वहाँ के पार्लियामेंट को है। चाइना के पार्लियामेंट में कितने सारे मेंबर्स हैं? 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना फॉर नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज द पार्लियामेंट ऑफ चाइना। जो डिफरेंट बात है चाइना के पार्लियामेंट में या चाइना के इलेक्ट्रल सिस्टम में, वो ये है कि चाइना में फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होता है, लेकिन वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम को नहीं रखा गया। वहाँ पर 8 छोटी छोटी पार्टियाँ हैं जो लीगली अलाउड है वहाँ पर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चाइना में जब भी सरकार बनेगी, वेन एवर गवर्नमेंट विल फॉर्म, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, दैट इज कॉल्ड CPC, Chinese Communist Party. This will hold the power. The government will always be formed by Chinese Communist Party. Chinese People's Congress के लिए या जो वहाँ का पार्लियामेंट है उसके लिए जब भी चुनाव होगा तो फाइनलाइज होगा, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार बनाती है। तो सिंगल पार्टी का वहाँ पर वर्चस्व है। तो इस स्थिति में आप कहेंगे ये तो फिर ऑथोरिटारियनिज्म हो गया यहाँ पर, तो फिर आप कहेंगे ये तो फिर डिक्टेटरशिप हो गया। सिंगल पार्टी को ही वहाँ पर सरवाइव करने का अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। बहुत सारा वहाँ पर आप कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है,
वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जनता का वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, जो कि डेमोक्रेसी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। मैंने आपको क्या पढ़ाया कि इन डेमोक्रेटिक सेटअप देयर इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज टेकन बाय पीपल और ऑन बिहाफ ऑफ देम देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। बट मैं ही कह रहा हूँ चाइना के केस में थोड़ा डिफरेंट केस स्टडी है यहाँ का। चाइना का जो पार्लियामेंट है, आपको मैं पढ़ा देता हूँ, आप खुद इसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना के पार्लियामेंट का नाम है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज द पार्लियामेंट ऑफ चाइना। हियर वी हैव क्लोज लुक। द नेम ऑफ चाइनीज पार्लियामेंट इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इट हैज़ पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। चाइना में इलेक्शन जो होता है उसमें भी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का परमिशन होना चाहिए। उनके कंसल्ट से ही, उनके अप्रूवल से ही छोटी पार्टियां जो वहाँ पर एलाइड पार्टी है, जो स्मॉल 8 पार्टीज की मैं बात कर रहा था, वो चुनाव लड़ सकते हैं। और वो कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। वहाँ पर ये नहीं कि वहाँ पर इलेक्टोरल कंपटीशन बिल्कुल फ्री है या फिर वो फेयर है। नो, वहाँ पर डिफरेंट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती, मेजोरिटी वहाँ प्रूव नहीं कर सकती। मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ पर चुनाव हराया नहीं जा सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी के मर्जी से चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी जो सिंगल पार्टी, वहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी के परमिशन से ही वहाँ पर जो छोटी पार्टियाँ हैं, जो 8 पार्टी है, वो चुनाव तो लड़ सकती है लेकिन वो कोऑपरेट करेगी कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनाने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उनकी लॉयल्टी जो है वो बनी रहनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। फिर से एक शब्द में आपको मैं बताऊँ, चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, फॉर्म होती है गवर्नमेंट जो होल्ड करती है पावर को, इलेक्शन दूसरी पार्टियां भी लड़ सकती है जो एलाइड पार्टनर्स होंगे उनके, लेकिन उनको कोऑपरेट करना कम्युनिस्ट पार्टी को, वो अलग से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती है। उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम लोग, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है, मान लीजिए बाय द वे वो मेजोरिटी को प्रूव नहीं कर पाती है, जनता ने उसको चुनाव में मौका नहीं दिया, तो कांग्रेस सरकार बनाएगी। एनडीए नहीं बनाएगी तो यूपीए बनाएगी। तो वहाँ पर हुआ ना कि एक पार्टी विफल रही, दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो वहाँ पर इलेक्टोरल कंपटीशन का हमको सबूत मिला। लेकिन चाइना में क्या है, नो, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड अदर एलाइड पार्टनर्स विल हेल्प टू कोऑपरेट देम to making it fruitful. Okay, so it's very important to notice it and keep it in your mind. Only party, only Chinese Communist Party is prevalent there. It survives and it dominates. So sometimes you can say that it is authoritarianism, it is autocratic, sometimes it is democratic, not set up there. Yes, you can say. So many questions are there for the Chinese concept. 3000 members elected from all over China for the National People's Congress, that is Parliament of China. Some members are elected by the army. कुछ लोगों का चुनाव आर्मी के द्वारा भी किया जाता है वहाँ पर पार्लियामेंट के लिए। 3000 वहाँ के पार्लियामेंट का जो स्ट्रेंथ है मेंबर्स का, जैसे इंडिया में 543 के लिए हम लोग इलेक्ट करते हैं ना अपने पार्लियामेंट। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, जो मैं बता रहा था आपको, ए कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए, जो एक सिंगल पार्टी है। अगर इसका अप्रूवल नहीं मिलता है तो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि फाइनली आपको किसके लिए मतलब वोट करना है, या फिर फाइनली किसके लिए आपको बात करनी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। दिस इज द ग्रेट डील विद द चाइनीज पीपल। सो हियर यू कैन से दैट दिस इज नॉट द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यस, case is different. Chinese democracy is totally different from Western countries or other countries of Asian continent. Okay, in India you can say that we have liberal democracy and we have different kinds of studies over this. In later classes, in later lectures, we will clarify that why such kind of setup is there. We have also case study of Mexico, Ghana, Saudi Arabia, Pakistan, India, Australia, Norway, Sweden. So many lessons we have. We will discuss about all those things. So, think over it. The government is always formed by the Communist Party, as I have earlier told you about that. Chinese Communist Party is second largest party in the world. Here, I will tell you that
why socialist democracy is prevalent in China, and what is the basic structure of socialist democratic setup in China. This is the gist of this lecture. This is the gist point of this lecture, and you will come to know about these things, why Chinese Communist Party and socialist democracy, and what kind of setup is there. Chinese, they describe it as a system in which power is centralized. मैंने पहले ही बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी के पास सारी पावर रहेगी, कोई भी बिना परमिशन के चुनाव में नहीं लड़ सकता है, सरकार जब भी बनेगी तो कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन तो नहीं हुआ ना, यहाँ पर तो सेंट्रलाइज हो गया। चाइना फेडरल है या यूनिटरी? यूनिटरी है, नॉट फेडरल। फेडरल में क्या होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देयर इज मोर एंड मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो चाइना में पावर को सेंट्रलाइज किया गया। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी जो चाइना का है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इन वन अथॉरिटी दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी, वन गवर्नमेंट, वन नेशन। द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विच इन टर्न एक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। चाइना के विकास के लिए, चाइना की जनता के लिए वहाँ पर कार्य तो करती ही है। इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पर ऑथोरिटेरियन या डिक्टेटरशिप होता है, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होता है। इसके बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे अलग से कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है हमारा, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ का जो वादा होता है, वो क्या डेमोक्रेसी में सक्सेसफुल ज़्यादा होगा या फिर डिक्टेटरशिप में। तो चाइना में जो डिक्टेटरशिप टाइप का जो रूल लग रहा है आपको यहाँ पर, चाइना का इकोनॉमिकल ग्रोथ होने का सबसे बड़ा वजह ये है कि यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम है, ऑटोक्रेटिक सिस्टम है इस तरह का। द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विच इन टर्न एक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट? The desire of the people of China, the economical growth of China. That is why Chinese setup is totally different. Always remember and keep in your mind, students, economical growth, fast economical growth is possible only in dictatorship. The progress, the rapid growth, I'm talking about rapid growth. In comparison of India, the Chinese economy is far better than Indian economy. इंडिया की इकोनॉमी से चाइना का इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर है। उसके बारे में हम लोग बहुत सारा पढ़े भी है, पढ़ेंगे आगे। फिलहाल, नो पार्टी इन चाइना इज अलाउड टू चैलेंज द कम्युनिस्ट पार्टीज टू होल्ड द पावर। एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू अबाउट दैट, नो पार्टी इज अलाउड टू मूव इन चाइना टू मेक द गवर्नमेंट, बिकॉज ओनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज अप्रूव्ड टू हैव इलेक्शंस एंड टू hold the power and to make the government. President will always be elected from the Chinese Communist Party. Such kind of setup is there. So the relationship between the 8 legal party, which इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, 8 लीगल पार्टी जो वहाँ पर छोटी पार्टी जो एलाइड ग्रुप में काम करेगी, वो भी किसके एलाइड? कम्युनिस्ट पार्टी के ग्रुप में, के एलाइड ग्रुप में। इसके बिना परमिशन के इसका भी कोई वर्चस्व या वजूद नहीं है वहाँ पर, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। And the ruling communist party is officially one of the cooperation, not competition. वहाँ पर अलग पार्टी में कंपटीशन नहीं होता। तो वहाँ पर इस तरह का जो हम लोग इलेक्टोरल कंपटीशन टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें आपने चाइना के बारे में केस स्टडी किया। You know that China had 8 legally recognized party, including China Democratic Party and consultative associations. Finally, I would like to say that only Communist Party is approved in China. Single party system is there. There is no more leg room, no opportunity to have the electoral competition in China. So in today's lecture we had a short discussion about Chinese electoral system and competition. I hope that you must have understood. In spite of that, if you have any queries, you may ask questions through WhatsApp and YouTube videos, comment over it. Thank you very much.